अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल पासिंग आउट परेड से खिताब किया है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि भारत का अक़लियतों पर मुनज़्ज़म जुल्म सितम, ख़ास तौर पर मुसलमान अक़लियत पर सितम हालिया सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। भारत को अपनी इस नाकामी को तस्लीम करना चाहिए कि वो इन मज़लूम अक़लियतों की इज़्ज़त व वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मसम्मत की है। इसके बावजूद हमारा मशरकी पड़ोसी मुसलसल हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है। झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। पहलगाम का अफसोसनाक वाक़या ब्लेम गेम के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले की एक बड़ी कड़ी है। इसे अब ख़त्म हो जाना चाहिए। बतौर ज़िम्मेदार रियासत हम किसी भी गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात में अपना किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। India's systemic persecution of its minorities, particularly Muslims and Sikhs, has become more pervasive over the years. It must accept full responsibility for its complete failure to protect the lives, dignity, and security of these oppressed communities. Pakistan, on the other hand, has always condemned terrorism in all its forms and manifestations. As the world's frontline state, that is Pakistan, against terrorism, we have endured immense loss with our 90,000 casualties. Ladies and gentlemen, there cannot be a more powerful manifestation of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color. And that has been demonstrated beyond any ray of doubt. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काकोल अकेडमी पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा कि बदकिस्मती से आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मसला कश्मीर अब तक हल नहीं किया गया है। इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता रहेगा, यहाँ तक कि उन्हें ये हक़ मिल ना जाए। I also need to underscore the importance of Kashmir. As the founder of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rightly said, Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Unfortunately, this globally recognized dispute remains unresolved. Despite multiple UN resolutions, let there be no doubt, Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people till they achieve their rights through their great struggle and sacrifices. अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और ये हमारी शदीद ख्वाहिश है कि इनके साथ पुरअमन ताल्लुकात रवा हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पासिंग आउट परेड की तकरीब से ख़िताब में कह रहा था कि बदकिस्मती से मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद अफ़गान सरज़मीन से दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म चंद रोज़ कबल अफ़गानिस्तान गए थे ताकि अफ़गानिस्तान से अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए ताल्लुकात बेहतर हो सकें। ताहम हमने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि काबुल से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती कि जब तक हमारी ज़मीन पर फितना और ख़वारिज के हमले ना रुक जाएं।
Afghanistan is our neighboring country, and it is our earnest desire to live in peace with them for all times to come. Unfortunately, despite our best and sincere efforts, terrorist activities continue to emanate from Afghan territory. In this behalf, we have made lots of efforts. Our Deputy Prime Minister visited Kabul a few days ago, and we shall continue our efforts to have better relations and understanding with our brotherly and neighborly country, Afghanistan. However, we have also delivered a strong and clear message to the interim Afghan government that while we desire peaceful neighborly relations with Kabul, this cannot happen so long as the Afghan soil is being used by Fitna al-Khawarij to attack Pakistanis and kill innocent brothers and sisters in Pakistan. पाकिस्तान फौज की शानदार रिवायत मिलिट्री अकेडमी काकोल में पुरवकार पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में आला सिविल और फौजी हुक्काम भी शरीक थे। गैर मुल्की सिफारतकार भी तकरीब का हिस्सा थे। कैडेट्स ने शानदार परेड का मुजाहरा किया, हलफ उठाया। पाकिस्तान के आइन से पासदारी का अहद किया गया। वज़ीर आज़म ने कामयाब कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। एजाज़ी शमशीर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हन्नान मलिक ने हासिल की, जबकि सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर ज़ैनुल आबिदीन को मिला। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शानदार पासिंग आउट परेड। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर और वजीर आजम शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अता तारड़, गैर मुल्की सिफारतकार, आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। कौमी परचम के साथ मार्च हुआ। हादरीन नशिस्तों से एहतरामन खड़े हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल फहद अली सत्ती 3rd पाकिस्तान बटालियन की कमांड कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तकरीब में आमद पर सलामी पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर कौमी तराने की धुन बजाई गई। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने नई आला कंपनी को अलामता किया। कैडेट्स ने परेड मार्च किया। शुरका नशिस्तों से खड़े हो गए। पीएमए बैंड की खूबसूरत धुन पर कैडेट्स ने कौमी तराना पढ़ा। पास आउट कैडेट्स ने हल्फ उठाया, पाकिस्तान से वफादारी का अहद किया। पुरवकार तकरीब में कामयाब होने वाले कैडेट्स को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एजाज़ात तकसीम किए। काकोल अकेडमी में पीएमए लॉन्ग कोर्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट में नमाक तकसीम किए गए। नेपाल कैडेट को बेहतरीन कारकर्दगी पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तरबियत में कारकर्दगी रही शानदार तो इनाम भी यादगार। काकुल अकेडमी में पास आउट होने वाले कैडेट अंडर ऑफिसर मोहम्मद हन्नान मलिक ने अपने नाम कर ली। सदाती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर ज़ैनुल आबिदीन ने हासिल किया। From 151 PMA long course, President's Gold Medal goes to Battalion Senior Under Officer
1st Pakistan Battalion, Zainul Abidin. नेपाल से आए कैडेट को बेहतरीन कारकर्दगी पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल से नवाजा गया। From 151 PMA Long Course, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, Overseas Gold Medal is awarded to Friendly Countries Senior Under Officer Sugam from Nepal. अंडर ऑफिसर मोहम्मद तलहा अयाज ने कमांडेंट एजाजी छड़ी हासिल की, जबकि लेडी कैडेट लाइबा रहमान को भी एहसास दिया गया। Muhammad Talha Ayaz, Laiba Rahman. उधर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो कौमी नज़रिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1924 में हिंदू मुस्लिम जुदागाना कौमों को किन अल्फाज में वाज़े किया था, आइए आपको दिखाते हैं। आपको बताएं कि गजा और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सियासी जमात की जानिब से मुल्क मजलूम फ़लस्तीनियों की खातिर कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक़ में धरना दिया, इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की। उन्होंने OIC, अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा से मामले में किरदार अदा करने की अपील की। अमरीका और यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया कि इसराइली इमदाद फौरी बंद की जाए। कराची में मुजाहिरीन ने कोरंगी क्रॉसिंग आने वाले दोनों ट्रैक बंद कर दिए। ट्रैफिक को CNG पंप से गोदाम चौरंगी और नासिर जम से चमड़ा चौरंगी की जानिब भेजा गया। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची ने भारत को आईना दिखा दिया है। कहा कि पहलगाम ड्रामा सिर्फ सिंध-तास मुआहिदा ख़त्म करने के लिए रचाया गया। मुनम जफर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुसलमानों का कातिल है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब जाग जाना चाहिए। हिंदू बनिया अयार भी है और मक्कार भी। भारत दहशतगर्दी करने पर तुला हुआ है। पहले पहलगाम में हमला होता है और उस हमले के बाद फौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इस हमले के अंदर पाकिस्तान मुलव्विस है और फिर सिंध-तास मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया जाता है। वो मुआहिदा जो आज से 65 साल पहले वर्ल्ड बैंक की सालिसी के अंदर हुआ, उसको बैक जुम्बिश कलम मुअत्तल कर दिया जाता है। ये है वो भारत, ये उसका माइंडसेट है, ये हुक्मरानों वहाँ के हुक्मरानों का मोदी का माइंडसेट है जो गुजरात के मुसलमानों का कातिल है। मुल्क भर में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और भारतीय आबी जहरियत के खिलाफ कराची में भी हड़ताल जारी है। कराची की सूरत हाल क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। देखिए, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती आबी जहरियत के खिलाफ इस वक्त जमात इस्लामी की अपील पर जो है वो कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक जो है वो हड़ताल की जा रही है। मैं इस वक्त कराची के इलाके रीगल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे दाएं जाने भी जो है वो तमाम जो शॉप्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है और बाएं जाने भी जो है वो तमाम शॉप इस वक्त जो है वो बंद है। और कौन कौन सी मार्केट्स बंद हैं, मेरे साथ उस्मान शरीफ और दीगर जो ताजिर हज़रात हैं वो मौजूद, उनसे हम बात भी करेंगे। उस्मान साहब, कौन कौन सी मार्केट्स बंद हैं आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी मालूमात की हैं कि मैं जा तो नहीं सका चूँकि यहाँ प्रोग्राम भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पूरा खोड़ी गार्डन इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। पीछे जूड़िया बाज़ार है वो भी बंद पड़ा हुआ है। डेंस हॉल की जो इलेक्ट्रिक मार्केट वो बंद पड़ी हुई है। आरामबाग की इलेक्ट्रिक मार्केट वो बंद पड़ी हुई है। टेक्नो सिटी जो है वो बंद पड़ा हुआ है। ये सदर का जो एरिया है जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं ये पूरा जो है बंद पड़ा हुआ है। सारी मोबाइलें मार्केट वगैरह, बल्कि चाय खाने भी जो है इस वक्त बंद हो गए ना। इनका दावा है कि ये मार्केट जो है ये बंद हैं और जिन ताजिर हज़रात ने जो है वो मार्केट्स खोलने का ऐलान किया तो उनकी दुकानें भी जो इनके मुताबिक जो है वो बंद हैं। तो इस वक्त बड़ी तादाद में जो है सिंध हुकूमत ने कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद मुकर्रर कर दी है। रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। ये फैसला शहर में ट्रैफिक हादसात से तशवीशनाक सूरत हाल से निपटने के लिए किया गया है। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन क्या इस पर अमल दरामद हो रहा है? इस हवाले से शहरियों से भी बात करेंगे और ट्रैफिक पुलिस हुकाम से भी बात करेंगे किस हद तक इसके ऊपर अमल दरामद कराया जा रहा है। आए चलते हैं और शहरियों से तफसीलात भी जानते हैं और ट्रैफिक पुलिस से भी बात करते हैं। 30 की स्पीड में नहीं होती रफ्तार, इनकी रफ्तार कम से कम भी ना 50-60 इससे ऊपर ही होती है। मैं तो फिर भी कम बता रहा हूँ, इससे मैक्सिमम ये है कि 50-60 हो जाती है इनकी। अभी जो बड़े ट्रक जा रहे हैं ये कम से कम 40 की स्पीड में जा रहे हैं, कम से कम भी, क्योंकि अभी बाकी जो गाड़ियाँ उनका तो लिमिट ही नहीं है ना कोई भी। यकीन मानो कि कितनी जाने हमारे सामने, मतलब है कि ऐसे उनकी स्पीड की वजह से हमारे सामने मतलब मोटरसाइकिल रगड़े गए हैं। बिल्कुल, अभी हम शान चुरंगी पहुंचे, यहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। चुरंगी की ये वो चुरंगी है जहाँ पे ट्रैफिक हादसा में नुमाया इजाफा देखा गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से
क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो इजलास किया गया था उसमें 30 किलोमीटर फी घंटे रफ्तार इनको दी गई थी हैवी ट्रांसपोर्ट को। उस पर क्या अमल दरामद हो रहा है? ट्रैफिक पुलिस अफसर निजामुद्दीन मेरे हमरा मौजूद है। हमारे तरफ से ये कार्रवाई हो जाती है कि जो गाड़ियाँ जो कमज़ोर गाड़ियाँ हैं, वीकनेस जिसकी जो कमज़ोर है, पुअर कंडीशन है, उसको 42 कोड का चालान करके अम्बोडी हाट फरीदाबाद भिजाया जाता है। जगह की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी सुबह नाका लगाया जाता है और हैवी व्हीकल्स जो है उनको चेक किया जा रहा है, जबकि जो खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उनकी गाड़ियाँ जब्त भी की जा रही हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात आज वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका स्क्वायर में अदा होंगी। दुनिया भर से 170 आला हुकाम और बैनुल मज़ाहिब वफूद की बड़ी तादाद के अलावा सरबराहान ममलिकत भी शरीक होंगे। मसीही दुनिया के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात आज वेटिकन सिटी में अदा की जाएंगी। पॉप फ्रांसिस को 3 ताबूतों में रखकर सेंट पीटर्स स्क्वायर लाया जाएगा। इनकी तदफीन सेंट पीटर्स मेजर मैरी बेसिलिका में होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पॉप की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए रोम पहुंच गए। बरतानिया के वजीर आजम, फ्रांस के सदर और दीगर आलमी रहनुमा भी वेटिकन में हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और वेटिकन को इंतहाई हसास जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ इसराइल के सख्त नाकिद पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में नेतन्याहू हुकूमत अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजेगी। इसराइली अखबार हार्टन्स ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली हुकूमत अपने किसी रहनुमा को अनजहानी पॉप की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए नहीं भेजेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।